Good afternoon, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last lecture, we studied steady flow energy equation. Okay, then apply steady flow energy equation to the different devices like compressor, steam condenser, evaporator, boiler, nozzle. Okay, reciprocating compressor. Okay, in last lecture we studied how to calculate steady flow energy equation to different devices. Okay, steady flow energy equation, or then steady flow energy equations we use for different devices. Now the next topic, throttling process. Okay, we apply steady flow energy equation to the throttling devices. Okay, what is throttling? Throttling process means what? The throttling process is the expansion of a fluid from high pressure to low pressure. Okay, generally throttling process example is in refrigerator. Okay, throttling or expansion devices is used where we use to convert high pressure fluid to low pressure fluid. Okay, how it is possible? We use obstruction in a flow, that is restriction in a flow, which causes to reduce the pressure of flow, so that the pressure reduces from high pressure to low pressure. That the process is called as a throttling process. Okay, consider as shown in figure, a porous plug is placed inside a tube which obstruct or restrict the flow of a fluid from 1 to 2. Okay, during this restriction, uh, your c1 c2, that is velocity changes. Okay, pressure also changes, that is pressure reduce. Okay, and temperature is measured by using thermometer. Okay, so steady flow energy equation, we know that. Write down the steady flow energy equation: m h1 plus c1 square by 2 plus gz1 plus q is equal to m h2 c2 square by 2 plus gz2 plus work done. Okay, now in throttling process as shown in figure, okay, there is no any work done, there is no any heat loss. Okay, as the throttling device is horizontal, so potential energy neglect. Okay, and also there is no changes in velocity, so kinetic energy also zero. Then the equation remains only enthalpy. Okay, q0, w0, z1 equal to z2, c1 and c2 also equal. Okay, so in equation remain only m h1 is equal to m h2. Okay, mass is constant, so mass get cancelled. We get the equation enthalpy h1 equal to h2. मतलब during throttling devices, enthalpy of inlet and enthalpy of outlet is remains same. That is, process is called as a throttling process is called as a isenthalpic process. Isenthalpic means the enthalpy remain constant during throttling process, that is called as a isenthalpic process. Okay, this is a throttling device. You may ask in question 3 for 3 marks, write down short note on throttling process, also write down the steady flow energy equations for throttling process. Okay, throttling process in which we reduce the flow of high pressure to low pressure. Okay, by using the restriction in the flow. Okay, then we draw the diagram. After explaining, we apply the steady flow energy equation for the throttling device. We get the equation h1 equal to h2, that is isenthalpic process. Okay, now we start the numericals on steady flow energy equations. Okay, now we have two steady flow energy equations. Okay, there is a normal variation. Okay, as you see that q minus w is equal to m. Okay, after that we use q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम. आप देख सकते हैं इक्वेशन, पहले इक्वेशन में हर एक के q और w और m के ऊपर क्या है, एक सर्कल लिखा है. वो सर्कल मतलब क्या है, नॉर्मली यहाँ पे मैंने नोटेशंस डिफाइन किए हैं. नॉर्मल q क्या है आपका, हीट, जो कि हीट हम किस में मेजर करते हैं, जूल और किलो जूल में मेजर करते हैं. w मतलब क्या है, वर्क है, जो कि हम जूल और किलो जूल में मेजर करते हैं. जैसे कि m है, m मतलब क्या है, मास. मास जो है वो भी हम किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर कर जाते हैं. ओके, अभी जो क्यू डॉट है, क्यू डॉट मतलब क्या है, हीट पर यूनिट टाइम. मतलब ऊपर अगर मैंने डॉट लिख दिया, मतलब क्या हो गया, उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं फ्लो रेट. अगर हीट होगा तो वो क्या होगा, हीट फ्लो रेट. वर्क होगा तो क्या होगा, वर्क फ्लो रेट. मास होगा तो क्या होगा, मास फ्लो रेट. मतलब क्या होगा, हीट पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम और मास पर यूनिट टाइम.
सो यूनिट भी क्या चेंज हो गए, जो कि हीट का यूनिट किलो जूल होगा, तो हीट फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर टाइम का क्या होगा, सेकंड, किलो जूल पर सेकंड। ओके, वर्क का क्या होगा सिर्फ, और वर्क फ्लो रेट का क्या होगा, किलो जूल पर सेकंड। मास का केजी है, तो मास फ्लो रेट का क्या होगा, केजी पर सेकंड। ओके, तो जो अगर आपको न्यूमेरिकल में कैसे दिया है, फ्लो रेट के हिसाब से दिया है या नॉर्मल हीट के हिसाब से दिया है। ओके, नॉर्मल हीट, वर्क और मास दिया होगा तो सेकंड नंबर का इक्वेशन यूज करना है। अगर आपको फ्लो रेट के हिसाब से दिया होगा न्यूमेरिकल, तो आपको फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करना है, क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इक्वल टू एम डॉट। ओके, क्योंकि डॉट लिखा है मतलब क्या होगा, फ्लो रेट, मतलब उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड किया है, तो आपका जो यूनिट होगा उसको भी आपको क्या करना होगा, सेकंड लगाना पड़ेगा। जैसे कि किलो जूल होगा हीट का, तो हीट फ्लो रेट का क्या होगा, किलो जूल पर सेकंड। ओके, तो ये आपको इक्वेशंस ध्यान में रखने हैं। ओके, और एक टर्म है, आपको बोल देता हूं मैं, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर है। और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, 1/डेंसिटी। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या है, 1/डेंसिटी, बराबर है। ओके, अभी देखो न्यूमेरिकल में आपको जो वैल्यू दी है वो जूल में दी है या किलो जूल में दी है। ओके, मतलब हीट वर्क जो कि जूल में है या किलो जूल में है। अगर जूल में होगा तो फॉर्मूला क्या है, जो अपना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है नॉर्मल, उसमें सब आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको किलो जूल में दिया है, हीट किलो जूल में है, वर्क किलो जूल में है, मास तो केजी में ही रहेगा, एंथैल्पी किलो जूल में है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस में आने वाली है, आपकी जूल में आने वाली है। तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 2 × 1000 क्या है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी किस में आएंगे, आपकी जूल में, तो उसको किलो जूल करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1000 से डिवाइड करना है। तो ये इक्वेशन का थोड़ा सा वेरिएशन में देख लो आप। अगर आपके क्वांटिटीज न्यूमेरिकल में जूल में है तो आपका नॉर्मल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होगा। अगर लेकिन आपका किलो जूल में है तो आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए उन दोनों क्वांटिटी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ए ध्यान में रखिए, बराबर है, समझ गए आप। ओके, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से। ओके, नॉर्मल और एक एग्जांपल में दिखाया था मैंने, एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, ऑल्सो और एक फॉर्मूला है एंथैल्पी का, एंथैल्पी इज इक्वल टू सीपी इंटू टी। व्हाट इज सीपी, आपको बताया था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वैल्यू 1.005 है फॉर एयर का। ओके, तो सीपी इंटू टी, टी फॉर टेम्परेचर, तो सीपी इंटू क्या होगा आपका, टी आ जाएगा, बराबर है। अभी स्टार्ट करते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के न्यूमेरिकल। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ स्टेडी फ्लो सिस्टम 50 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन पर केजी ऑफ फ्लूइड। ओके, तो आपको पहले क्या दिया है, वर्क इज डन। ओके, वर्क इज डन मतलब क्या होगा, डब्ल्यू आपको पॉजिटिव दिया है 50 किलो जूल, तो मैंने गिवन में डाल दिया डब्ल्यू इक्वल टू 50 किलो जूल पर केजी है, तो किलो जूल पर केजी होगा आपका यूनिट। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू 50 किलो जूल पर केजी। पर केजी मतलब मास कितना होगा आपका, 1 केजी रहेगा, बराबर है। नेक्स्ट क्या दिया, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या आ गया, स्मॉल वी। ओके, तो स्मॉल वी दिया है आपका 0.4। उसके बाद दिला है प्रेशर एंड वेलोसिटी एट द इनलेट, सब इनलेट की वैल्यू दी है, मतलब स्मॉल v1, स्मॉल p1 और स्मॉल वेलोसिटी मतलब क्या आएगा, c1। ओके, इसकी वैल्यू दे दी है 0.4 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, प्रेशर कितना दिया है, 600 किलो पास्कल। ओके, एंड वेलोसिटी कितनी दी है आपको, 15 मीटर पर सेकंड, बराबर है, किलो पास्कल है। और जो वर्क डन किस में है, किलो जूल में है, किलो पास्कल और किलो जूल तो सेम रखना है। ओके, एक किलो जूल और एक पास्कल ऐसा डिफरेंट नहीं करना है। ओके, अगर आपकी टर्म जूल में होती तो वहां पे आपका प्रेशर किस में चाहिए, पास्कल में चाहिए। अगर आपका वर्क डन किलो जूल में है तो प्रेशर किस में चाहिए, किलो पास्कल में। ओके, तो आपकी यूनिट ध्यान में रखना है आपको। ओके, वर्क डन किलो जूल में है तो प्रेशर किस में चाहिए, किलो पास्कल में चाहिए। वर्क डन जूल में है
तो प्रेशर किस में चाहिए आपको, जूल में होगा तो किलो पास्कल, जूल में होगा तो पास्कल, और किलो जूल में होगा तो किलो पास्कल। ओके, तो आपको इनलेट की कंडीशन दी है, आउटलेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर एंड वेलोसिटी दी है। ओके, उसके बाद दिया है आपको द इनलेट इज 30 मीटर अबोव द एग्जिट। ओके, तो इनलेट अबो है, मतलब इनलेट आपका ऊपर है और एग्जिट आपका नीचे है, तो इनलेट का कैलकुलेट होगा Z1 से, और आउटलेट का डिस्टेंस फ्रॉम डेटम कितना होगा, Z2 होगा। ओके, उनका डिफरेंस कितना है, मतलब Z1 माइनस Z2 कितना दिया है, 30 मीटर। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में क्या चाहिए, Z2 माइनस Z1, तो वैल्यू क्या आएगी, -30 मीटर, बराबर है। उसके बाद क्या दिया है, द हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम। अभी हीट क्या है, लॉस हो रही है सिस्टम से, मतलब हीट क्या आ गई आपकी, निगेटिव आ गई, तो हीट की वैल्यू कितनी होगी, -8 किलो जूल पर केजी। ओके, बराबर है। अभी ये मैं इक्वेशन में अप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन लिख दिया मैंने। ओके, फ्लो रेट नहीं है, मतलब नॉर्मल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ गया, लेकिन क्या है, किलो में है सब, तो किलो पास्कल में है, किलो जूल में है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ओके, अभी एंथैल्पी जो है दी नहीं है, बराबर है, तो एंथैल्पी कैसे निकालोगे, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, तो एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वैल्यू, दैट इज U प्लस PV। तो U2 माइनस U1, P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, प्रेशर पता है, इंटरनल एनर्जी दी है क्या, नहीं दिया, हमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q पता है, W पता है। ओके, तो बचा क्या सिर्फ आपका U2 माइनस U1, तो आपको क्या मिलने वाला है इसमें, U2 माइनस U1। अभी ध्यान से एक बार न्यूमेरिकल देख लीजिए। ओके, इसमें क्या है, अगर वर्क डन जूल में होगा तो प्रेशर पास्कल में होगा, वर्क डन किलो जूल में है तो प्रेशर किस में है, किलो पास्कल में है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ किलो जूल में है, तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को 1000 से डिवाइड करना है। ओके, एंथैल्पी का इक्वेशन लिख दिया, U प्लस PV। ओके, तो U2 माइनस U1, P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये सब वैल्यू पुट करके मुझे क्या मिलने वाला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1। ओके, अभी स्टार्ट विथ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे दिया स्मॉल टर्बाइन रन्स एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर्स इंटर्स इन द टर्बाइन एट 4 bar and 40 degree Celsius with a velocity of 40 meter per second. At the exit, the air is at 1 bar and 20.5 degree Celsius with a velocity of 200 meters per second. Okay, if the work output of turbine is 52 kilojoule per kg of air, calculate heat transfer per kg of air. ओके, अभी न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, इनलेट और आउटलेट का प्रेशर दिया है बार में, टेम्परेचर दी है डिग्री सेल्सियस में, और C1 दिया है, C1 C2 दैट इज वेलोसिटी दी है इनलेट एंड एग्जिट के। अभी प्रेशर क्या है, 4 बार और 1 बार, P1 4 बार है और P2 कितना है, 1 बार है। ओके, तो अभी देखो जो हमें वर्क दिया है, वर्क किस में है, किलो जूल में है, बराबर है, तो प्रेशर किस में रखना पड़ेगा, हमें किलो पास्कल में रखना पड़ेगा। तो 4 बार का किलो पास्कल करना है, मतलब 4 बार मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 10⁵ पास्कल। अभी वर्क डन किलो जूल में है तो प्रेशर भी किलो पास्कल में चाहिए, तो अपना क्या आएगा, 400 किलो पास्कल P1। ओके, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो टेम्परेचर का डिग्री से मैंने क्या किया, केल्विन में किया, 40 + 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हुए क्या करते हैं हम, उस 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 274 केल्विन, उसमें क्या करना है, 273 ऐड करना है। तो टेम्परेचर T1 और T2 को मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया, C1 C2 पता है, वर्क डन क्या है, आउटपुट है, मतलब पॉजिटिव आ गया, W पता है, बराबर है, मास 1 kg दिया है, और उसमें कहा है कि कुछ Z1 और Z2 का दिया है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं दिया है, मतलब क्या होगा, टर्बाइन अपना हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, डेटम अपना Z1 इक्वल टू Z2 होगा, बराबर है, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा, बराबर है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मैंने अप्लाई कर दिया, Q माइनस W इक्वल टू इक्वेशन डाल दिया। ओके, अभी इसमें क्या क्या पता है हमें, एक तो हमें W पता है,
बराबर है। पूछा क्या है, क्यू पूछा है, C2 C1 पता है, Z2 वो तो निगलेक्ट होगा, 0 हो जाएगा, बराबर है। अभी एंथैल्पी कैसे निकालना है, ओके। तो एंथैल्पी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, H इज इक्वल टू CP इंटू टी, ओके। सो H2 माइनस H1 क्या होगा, CP इंटू T2 माइनस T1, ओके। CP इंटू T2 माइनस T1, CP तो पता है, टेम्परेचर T2 और T1 भी पता है, तो मुझे क्या मिलेगा, H2 माइनस H1 मिलेगा। तो H2 माइनस H1 की वैल्यू मैं वहाँ पे पुट करूँगा। मास तो 1 kg है, Q आपको निकालना है, W पता है, C2 C1 पता है, तो उससे क्या मिलेगा मुझे, Q कैलकुलेट करूँगा, बराबर है। इसमें प्रेशर बार में था, उसको क्या कन्वर्ट किया, किलो पास्कल में किया, बराबर है। और एंथैल्पी का एक इक्वेशन यूज किया, H इज इक्वल टू CP इंटू टी। So H2 minus H1 is equal to CP into T2 minus T1. Okay. Okay. Start next lecture, next unit. Next numerical. Okay. In a certain steady flow process, 12 kg of fluid per minute enter at a pressure. अभी यहाँ पे देखो जो मास दिया है वो किस में दिया है, kg पर मिनट, मतलब क्या दिया है, मास पर यूनिट टाइम दिया है, मास फ्लो रेट दिया है। तो मेरा क्या इक्वेशन में लिखूंगा, m डॉट q डॉट माइनस w डॉट इक्वल टू m डॉट वाला इक्वेशन लिखूंगा, ओके। तो m डॉट दिया है मुझे 12 kg पर मिनट, बराबर है। m डॉट मिला मुझे 12 kg पर मिनट, ओके। तो मैं सबका क्या करूँगा, kg पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, ओके। मिनट का सेकंड में करना है, मतलब क्या करूँगा, 60 से ये करूँगा मैं, ओके। तो 12 kg पर मिनट है, तो मेरा क्या होगा, 12/60 kg पर सेकंड, ओके। तो 12 को 60 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मास किस में मिलेगा, kg पर सेकंड में मिलेगा, ओके। मास का हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, एंटर मतलब इनलेट कंडीशन दिए, इनलेट प्रेशर दिया है 1.4 बार, ओके। 1.4 बार दिया है। डेंसिटी दी है 25 kg पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी दी है 120 मीटर पर सेकंड, और इंटरनल एनर्जी दी है 920 किलो जूल पर केजी। अभी यहाँ पे देखो जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी किस में है, किलो जूल में है। तो प्रेशर किस में चाहिए, किलो पास्कल में चाहिए। तो प्रेशर को किलो पास्कल में किया, P1 को। अभी डेंसिटी दी है, बराबर, डेंसिटी 1 दिया है, ओके। डेंसिटी मतलब क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या है, 1/डेंसिटी, ओके। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 कैसे निकालोगे, 1/25, ओके। तो V1 मिलेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। वेलोसिटी मतलब C1 पता है, इंटरनल एनर्जी मतलब U1 पता है। उसी तरह से सेकंड मतलब एग्जिस्ट के लिए क्या मिलेगा मुझे, P2 मिलेगा किलो पास्कल में। डेंसिटी का स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 मिलेगा, ओके। C2 वेलोसिटी दिया है, इंटरनल एनर्जी U2 दिया है, ओके। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फ्लूइड रिजेक्ट 60 किलो जूल पर सेकंड ऑफ हीट। अभी यहाँ पे क्या है, हीट रिजेक्ट हुआ है, मतलब क्या हो गया, हीट नेगेटिव है। Q इज इक्वल टू क्या दिया है, -60 किलो जूल पर सेकंड, ओके। एंड राइजेस थ्रू 60 मीटर। राइजेस मतलब क्या है, मीटर मतलब क्या है, हाइट डिफरेंस मतलब क्या दिया है, Z2 माइनस Z1 दिया है, कितना, 60 मीटर, बराबर है। तो इसमें मैं इक्वेशन अभी एंथैल्पी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन ले लिया मैंने स्टेडी फ्लो एनर्जी की इक्वेशन, Q माइनस W डॉट इज इक्वल टू m डॉट, इक्वेशन तो पुट किया। इक्वेशन किलो जूल के हिसाब से है, इसलिए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को 1000 से डिवाइड कर दिया, बराबर है। अभी एंथैल्पी निकालना है, एंथैल्पी का फॉर्मूला यूज किया, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ओके। इंटरनल एनर्जी दी है, प्रेशर दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, ओके। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद मुझे H2 माइनस H1 मिलेगा। उस H2 माइनस H1 को क्या करूंगा मैं, इक्वेशन में डाल दूंगा, ओके। तो Q डॉट पता है, M डॉट पता है, और C1 C2 पता है, Z2 माइनस Z1 पता है, G मतलब 9.81 है। तो उस हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, वर्क फ्लो रेट मिलेगा, ओके। वर्क फ्लो रेट मतलब किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड मतलब क्या होता है, किलोवाट। मुझे वर्क फ्लो रेट कितना मिला, -43.1979 किलोवाट, ओके। तो उस तरह से हमने क्या निकाला, और वर्क फ्लो रेट निकाल दिया, ओके। वर्क डन इन किलोवाट दैट इज वर्क फ्लो रेट, और चेंज इन एंथैल्पी भी निकाल दी, ओके। तो हमारा जो है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स है, ओके। बेसिक न्यूमेरिकल्स है, ये इसी तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में एक तो हमें पूछा जाता है, राइट डाउन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड अप्लाई फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, और
इसमें आपको एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। ओके, आपके इस यूनिट में दो टाइप के न्यूमेरिकल है, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स है और दूसरा है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल है। ओके, तो ये अपना फर्स्ट यूनिट पूरा कंक्लूड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, आपको जो असाइनमेंट दी वो कंप्लीट करनी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट सेकंड चालू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।